Hello everyone, welcome to Byju's Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams, and I hope all of you are doing really great and are in exceptionally great health. So today we are once again back with our you can say our USP or our most important and most awaited session of the week, that is Weekend Ka Gyan, where we discuss about your doubts which you are having in the particular week. So इस week में जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन था, जिसका मुझे लगा कि मुझे आंसर चाहिए, आंसर करना चाहिए rather than motivating you, it is very important to answer this question right now, that is mock scores not increasing sir. बिल्कुल मॉक के स्कोर इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं, दे हैव बिकम स्टैग्नेंट, या फिर मॉक के स्कोर और कम हो रहे हैं. So sometimes it is happening sir, in this mock I have got 65 marks and in the next mock I have got only 52 marks. So what is happening in my mock score, with my mock scores? For some of you are having doing great and you are having 95 score in this particular mock, and in the next mock also you are getting 90, 95, and it is somewhere stagnant. It is not at all increasing right now from last 1 month or from last 15 days. So what to do, what not to do, whether it is a problem of concern or it is a matter of concern or not. So there are so many questions which needs to be answered in this session. तो इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बी विद मी टिल द लास्ट. जब तक मैं अपनी बातें खत्म ना कर लूं तब तक मेरे साथ बने रहो, एंड ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ योर आंसर्स वुड बी सॉर्टेड आउट. And one more announcement which I am making it in the first week of January, we are going to have a full-fledged session on mocks, all about mocks. ठीक है, today we have got only one thing related to mock, that is mock scores not increasing, what to do. ठीक है, और mock scores are even decreasing, what to do. So today we are taking only one question, but in the first week of January we are going to have a full-fledged session on all about mocks, everything. कब देने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. So each and everything we'll discuss in that mock. So फटाफट से शुरू कर देते हैं आज का सेशन, and आज का सेशन is going to be very amazing session. Once again I am saying this. So what is the agenda? Agenda is sir mock score not increasing. What to do? सर स्टैग्नेंट हो गए हैं. दो तीन तरह के डाउट आते हैं यहाँ पर. सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाउट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल राइट नाउ. मे बी 80 मार्क्स आ रहे हैं, 80 to 85 की रेंज पकड़ लिए मार्क्स ने, या 60 to 65 पे आके स्टैग्नेंट हो गए हैं, या 50 to 55 के बीच में स्टैग्नेंट हो गए. स्कोर्स आर गेटिंग स्टैग्नेंट, एंड सम ऑफ यू आर हैविंग डाउट लाइक कि स्टैग्नेंट छोड़ो सर, दे आर फ्लक्चुएटिंग अ लॉट. मतलब फॉर एग्जांपल इन वन ऑफ द मॉक आई एम गेटिंग 90 प्लस, एंड इन द अदर मॉक I was expecting to get 95, but I have got only 60 marks. So the level of fluctuation is increasing. So is this a matter of concern or not? So दो तरह के क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करेंगे, और दोनों ही क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है और डिफरेंट तरीके से आंसर करने की कोशिश करेंगे आज. तो उससे पहले what we are and what we want to be, we have to take a leap of faith and give it a jump, give it a shot. तो वही शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं. Make the jump and I am always be with you during your jump. ठीक है, एंड देयर वन मोर थिंग, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. ड्रीम बिग, वर्क वेरी हार्ड एंड वर्क वेरी स्मार्ट. चलो जी, तो क्या मॉक के स्कोर से फर्क भी पड़ता है या नहीं? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्या प्लीज डू नॉट टारगेट स्कोर्स. सबसे पहले तो आप जो टारगेट कर रहे हो वही गलत है. अच्छा, ओ माय गॉड, क्या कह रहे हो सर, स्कोर टारगेट ना करे तो क्या टारगेट करें? क्या दिमाग में सोच के मॉक को दे? कुछ तो होना चाहिए ना. मतलब देयर हैज टू बी सम फिगर in our mind when we'll be giving the mock. Let's target 90 marks or 100 marks or 80 marks. So there has to be certain figure in our mind while giving the mock. I completely understand that thing, but do not get worried from the scores. If the scores are fluctuating or scores are becoming stagnant, do not worry about it much. ठीक है, वरी का पॉइंट हो सकता है, वो उस पर हम डिस्कस करेंगे, बट वरी का पॉइंट क्या है? इफ योर रैंक इज स्टेगनेंट, or if you are percentile, if you are getting percentile that is becoming stagnant, or your rank is getting stagnant, or your rank are fluctuating a lot, then it is a problem of concern. Sometimes what happens is, for example, I have got 2000 rank in this mock at the score of 92. ठीक है, in the next mock I have got only 63 as a score, but my rank was, let's say, 1983. So although my score is very less, but the rank has improved instead of डिक्रीजिंग. तो रैंक मेरी यहां पर ज्यादा होनी चाहिए थी 2000 से, बट इट इज लेस देन 2000. व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ मॉक हैज इंक्रीज. तो यू नीड टू टारगेट द राइट थिंग. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मॉक सीरीज, जो भी आप मॉक सीरीज ले रहे हो, उसमें हर टाइप के मॉक मिलेंगे आपको. क्यों? बिकॉज दे वांट यू टू बी रेडी फॉर पेपर. तो वो आपको एक क्लैट के डिफिकल्ट, क्लैट के लेवल से डिफिकल्ट, इस लेवल का भी पेपर मिलेगा, इस लेवल का भी मिलेगा, इस लेवल का भी मिलेगा. तो इन वन ऑफ द मॉक
लेट्स से दैट मॉक वाज वेरी वेरी इजी एज कंपेयर टू द क्लैट ओरिजिनल पेपर जो आता है, दैट वुड बी द करंट पैटर्न। तो इसमें आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, पर स्कोर के बाद भी ये रैंक आ रही है, या फिर परसेंटाइल आपकी कम आ रही है, जो भी आपका पैरामीटर है, ठीक है। नेक्स्ट मॉक आपका बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, आपका स्कोर कम हुआ है लेकिन आपकी रैंक इंप्रूव हो गई है। सो यहां पे आपने इंप्रूवमेंट करी है या नहीं? ऑब्वियसली इट इज एन इंप्रूवमेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस शिफ्ट। ऑल्दो इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 10 to 20 मार्क्स के बीच का शिफ्ट रहता है, बट अगर इतना भी शिफ्ट है एंड इफ योर रैंक इज लाइक ठीक है ओके +100 +200 +300 मैक्स टू मैक्स +500 जा रही है, परफेक्टली ओके। बट हाँ, रैंक में अगर 10,000 20,000 का फर्क आ रहा है देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो सबसे पहले ये समझना है कि हर एक मॉक का डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होने वाला है। तो जो स्कोर आपके एक मॉक में 90 मार्क्स पे आ सकते हैं, वही स्कोर आपके 60 मार्क्स पे भी आ सकते हैं नेक्स्ट मॉक में, या फिर 110 मार्क्स पे भी आ सकते हैं नेक्स्ट वाले मॉक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड टारगेट रैंक और परसेंटाइल। तो सबसे पहले क्या करना है, टारगेट ठीक करना है भाई। इस मॉक को स्कोर के साथ साथ किस चीज पे और नजर रखनी है, साथ साथ नजर रखनी है किस पे? यस, यू शुड टारगेट you should have an eye on your rank and the percentile also, then only it is a problem of concern अगर वहां पर भी डिस्टर्बेंस हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 63 मार्क्स पे you have got let's say 10,000 रैंक, then it is a matter of concern कि 8,000 रैंक कहां चली गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। तो I destroyed the enemy cruiser, oops wrong target, oh well it was a good shot anyway, ऐसे नहीं करना है, right? So you need to understand, you should target the right thing। और right thing क्या है? इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग योर स्कोर्स यू शुड टारगेट रैंक और परसेंटाइल। साथ साथ स्कोर पे एक ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली पेपर देते टाइम यू शुड हैव सर्टेन स्कोर इन माइंड, या कुछ ना कुछ एक लेके चलना पड़ता है, वो ठीक है, परफेक्टली ओके। बट जब आप एनालिसिस कर रहे हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या आप में इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं, एंड दैट इंप्रूवमेंट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय योर रैंक्स और बाय योर परसेंटाइल, नॉट बाय योर स्कोर्स। पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्या करें सर, ये तो समझ में आ गया, पर मॉक्स के स्कोर भी स्टैग्नेंट है और अगर रैंक भी स्टैग्नेंट है और परसेंटाइल भी स्टैग्नेंट है, फिर क्या करना है उस पर बात कर लेते हैं। तो देन वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड इन दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हार्ड वर्क करना है, या फिर और आई कैन से वर्क हार्ड स्मार्टली। अब स्मार्टली कैसे करेंगे? एनालाइज द मॉक्स प्रॉपरली एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। एनालाइज करना है मॉक को। एनालाइज कैसे करते हैं सर मॉक को? आज तक तो यही समझ में नहीं आया। ऑल्दो ऑल अबाउट मॉक्स वाले सेशन में आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल, बट स्टिल राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि जब आप एनालाइज करो मॉक्स में, तो आप उन एरियाज को, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो या जिसमें आप कॉन्फिडेंट थे। उन टॉपिक्स पे आपने क्वेश्चंस करे थे, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि यस अगर कोई भी डुएबल क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एबल टू डू इट। उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, और उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में अब देखो कि उन टॉपिक्स के अंदर में से कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप नहीं कर पा रहे, या फिर कितने क्वेश्चन ऐसे जो रॉन्ग हो रहे हैं। तो जो आपको आता है या जो आप पढ़ चुके हो, उनमें से अगर आप नहीं कर पा रहे हो अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट नहीं कर पाने का एक ही रीजन होना चाहिए, क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट। और डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें एग्जाम में नहीं करने होते, सारे इजी करने होते हैं और कुछ मीडियम क्वेश्चन करने होते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। तो एक ही रीजन होना चाहिए कि क्वेश्चन वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट और नॉट डूएबल इन द गिवन टाइम। तब अगर छोड़ा है तो इट्स परफेक्टली ओके। बट अगर इफ द क्वेश्चन वाज इजी और मीडियम लेवल, और अगर आप उसको छोड़ रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न है। तो वो प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न आपको आइडेंटिफाई करने हैं एनालिसिस करते टाइम, और पूरे वीक उसके ऊपर वर्कआउट करना है। तो पूरे वीक जब मैं बोल रहा हूं, या फिर पूरे इफ यू आर गिविंग मॉक्स आफ्टर 15 डेज और 20 डेज राइट नाउ, अगर आप 15-20 दिन के बाद में मॉक दे रहे हो तो 15-20 दिन के बाद में उसे एनालाइज करोगे और उसके बाद में देखोगे, मतलब 15-20 दिन तक उस पर वर्कआउट करोगे, फिर दोबारा से मॉक दोगे, इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहो। तो क्या होगा, आपकी सारी वीकनेसेस सारी स्ट्रेंथ वाले साइड पे आ जाएगी। तो आपका काम क्या है, एक आपका LHS है और एक आपका RHS है। यहां पर आपकी वीकनेस है और यहां पे आपकी स्ट्रेंथ है। तो एक एक करके सारी वीकनेस को स्ट्रेंथ में लेकर के आना है एग्जाम डे तक। दैट शुड बी योर टारगेट। ठीक है, ये दो चीजें करोगे, जब आपकी वीकनेस कम होती जाएंगी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और स्ट्रेंथ को साथ साथ रिवाइज करते रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो वापस वीकनेस में चली जाएंगी। ऐसे पूरा विशियस सर्कल नहीं बनाना है। ठीक है, सो उससे क्या होगा, आपके स्कोर में अपने आप इंप्रूवमेंट होगी, ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड टू दीज टू थिंग्स वुड बी सॉर्टेड नाउ। ओके, तो व्हाट्स गोइंग ऑन इन बायजूस एग्जाम प्रेप? विंटर कार्निवल सेल इज गोइंग ऑन। विंटर कार्निवल चल रहा है भाई 21st to 31st दिसंबर। फ्लैट 25% फॉर क्लैट, एलेट, बीलेट एंड जामिया LLB एग्जाम्स, एंड द कूपन कोड इज क्रिसमस 25, XMAS 25 is the coupon code. So grab this opportunity and be the part of बायजूस एग्जाम प्रेप। तो आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर कि मॉक्स के स्कोर्स को तो देखना ही है, साथ साथ यू हैव टू हैव अ लुक एट रैंक एंड परसेंटाइल ऑल्सो, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चले कि अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा स्कोर कम हुआ है लेकिन रैंक इंक्रीज हो गई, दैट मींस मॉक का डिफिकल्टी लेवल हाई था।
या फिर उल्टा भी हो रहा है तो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता लगेगी। दूसरी चीज, एनालाइज करना है मॉक्स को। LHS में ऑल योर वीकनेसेस, RHS में ऑल योर स्ट्रेंथ्स। यू हैव टू मूव ऑल योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स को बार बार रिवाइज करना है सो दैट वो वहीं रहे, ये नहीं घूम के वापस विशियस सर्कल बना दो दोबारा वो वीकनेस में चली गई है। सो बस ये करते चले जाओ एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली योर स्कोर्स विल इंप्रूव एंड वी आर गोइंग टू हैव अ full-fledged session also in the first week of January for all about mocks. Thank you so much and happy winters, Merry Christmas and Happy New Year everyone. See you in the next week in Weekend Ka Motivation. Thanks a lot. Thank you so much.